Good evening, everyone. Namaskar. I am Dilmeet Kaur, founder of Riches Multi Services, live from the page of Riches Multi Services on Facebook and Zoom. The topic for today's discussion is how to keep children fit and healthy at home. And we have our guest, Priyanka Singh, with us for the session. Welcome, Priyanka. For any queries regarding the company, you can always log on to www.richesmultiservices.com. And you can always send us a WhatsApp message on 9919979786, and our associates will get back to you soon. We at Riches Multi Services are taking care of all your financial needs. We are providing all type of financial consultancies regarding mutual funds, insurance, and other customized products in association with Wealth Creation Commodities Private Limited and Wealth Creation Group of companies. You can always try our supplement products and our health sessions for a better well-being. Let me start with introducing Priyanka with you. She has been associated with NBT since last uh, 20 years with an experience of 20 years in journalism. She has been a part of Navbharat Times with her expertise in women empowerment, relationship, parenting, and how to manage your children. She is the author of the best-selling book, Diet and Dieting. Most of us have heard about it. So, the topic for us today's session is how to keep your children fit and healthy at home. Let's start and discuss and get tips from Priyanka to manage your children's fitness and mental health at the same time. Priyanka, can you Yeah, hear us? yeah. Am I audible? Thank you. Okay. So, Priyanka, please tell us about your social media handles and the YouTube channel you are already sharing. So then we can take up the questions. Yeah, basically, Abhi, as of now, I'm running a YouTube channel, Mama Mantra, and I'm getting very good response of that. And then I have same with the same name. I have my account on Insta also, and Twitter also. We have same account. I'm in Mama Mantra. That's it. Yeah. So you can always follow People her can reach me. Twitter Yeah. accounts. You can always reach her on her Twitter account, Instagram account, Facebook account by the name of Mama Mantra, and a YouTube channel Mama Mantra at the same time. So let's start with the first question: how to maintain balance between the mental and the physical health of your child at home? Yeah. Okay, Dilmit, it's very important question actually, because normally when we talk about health, people just consider it as physical health. नॉर्मली ऐसा लगता है कि हेल्थ का मतलब ही है फिजिकल हेल्थ, लेकिन एक्चुअल में हेल्थ में बोथ एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट्स फिजिकल हेल्थ बी इट्स मेंटल हेल्थ, दोनों को मिला करके ही किसी भी बच्चे या किसी भी इंसान की जो हेल्थ है वो प्रॉपर हेल्थ होती है. तो हम लोग बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स तो हमें लगता है कि बच्चे हैं, बाहर खेल के आ जाते हैं एंड देन वी आर गिविंग गुड फूड टू देम, सो दैट्स ऑल. लेकिन ऐसा नहीं है. आजकल का जो टाइम है, बिकॉज ऑफ कोरोना टाइम, बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑफ सो मेनी Right. सच अ बिग कंपटीशन, तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चों के भी जो मेंटल इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं. पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट द लास्ट 6-7 मंथ्स व्हेन ऑल द किड्स आर एट होम ओनली, तो तब बच्चों का Hmm. जो एक मेंटल एक स्टेटस है वो एक अलग तरह का मेंटल स्टेटस देखने में आ रहा है. इनफैक्ट जब मैं कई बार मेरी मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट से बात होती है तो वो बताते Hmm. हैं मुझे कि बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं इस तरह के कि जहाँ बच्चों में एंग्जाइटी, काइंड ऑफ डिप्रेशन, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन, लेकिन कहीं Hmm. कहीं कुछ एक नेगेटिव चीज आ रही है. सो Anxiety एस is there. या सो ऐसे में ये ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करें. नाउ इट्स द टाइम वी हैव टू कंसिडर मेंटल हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ. सो इन दैट अभी हमें कुछ टिप्स या कुछ सजेशंस आप शेयर करिए रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन. Okay, I would like to share a PPT regarding that. Just ऑफ कोर्स. yeah. Okay, are you able to see the PPT?
Not yet. Okay, let me check share screen. And this is fine. We can see the PPT now. Yeah. So basically, when we talk about mental tips for mental health, so first of all, we have to keep this in mind because it's already a tough time. And in fact, in my last session also, I discussed the same thing because our kids are already going through a bad phase. सब mental कहीं ना कहीं एक जो एक normal routine life होती है बच्चों की उससे अलग life चल रही है तो of course they are under pressure. ऐसे में we don't have to be harsh or hard on our kids as already time ही इतना hard है उनके साथ जो चल रहा है. We can't ignore that. So first of all, we have to be more polite, more humble and more understanding towards our kids. पहली चीज जो हमें करनी है. सेकेंड चीज क्या है कि जब भी हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो वी हैव टू एंगेज आवर किड्स इन अ बेटर और पॉजिटिव मैनर एंड वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद देम. कोई भी गेम हो सकता है बच्चों के साथ जिस जो भी गेम में उनकी इंटरेस्ट है दिलचस्पी है उस तरह के गेम बोर्ड गेम्स हो सकते हैं डमस्ट्रा जैसे इंटरेस्टिंग गेम्स हो सकते हैं सारे बच्चों को आते हैं चेस हो सकता है इस तरह के जो भी गेम्स है जिसमें बच्चे कहीं ना कहीं इंजॉय करते हैं उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना है. एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि जैसे कि आप नॉर्मली सारे लोग बच्चे टीवी देखते हैं आजकल इतनी सीरीज हैं यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें बच्चों को जो कॉमेडी मूवीज बेस्ट शोज हैं थोड़े से एफर्ट करके बच्चों को कॉमेडी शोज या फिर कॉमेडी जो मूवीज है वो दिखानी है. बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज हैं. उससे क्या होता है कि बच्चों का जो थोड़ी सी भी नेगेटिविटी अभी जो कि हम लोग के आसपास के माहौल में है वो चीज़ खत्म हो जाती है और बच्चे थोड़ा बेटर मूड में आ जाते हैं. एंड सपोज हम लोग बात कर रहे थे अभी मेंटल हेल्थ की तो हम लोग कुछ मेमोरी गेम्स जो होते हैं उस तरह के गेम्स भी उनके रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं. वो उनके मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेमोरी को भी इन्हांस करते हैं इम्पावर करते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं और सबसे जो सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दे हैव टू बी कनेक्टेड विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. जो अब कई बार अब चूंकि बाहर जाके बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो हमें कोशिश करना है कि बच्चे ऑनलाइन ही सही मोबाइल के थ्रू सही वीडियो के थ्रू सही जिस तरह से हम लोग जूम पर बात कर रहे हैं आप और मैं उस तरीके से जूम मीटिंग के थ्रू ही सही लेकिन बच्चों को अपने पसंद के लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करके रहना है. उन्हें अकेला नहीं फील करना है. अगर किसी वजह से बच्चे उदास हैं अपसेट हैं तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि उसके पीछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर मूड या जो भी उनका साथ जिस भी वो फेज से जा रहे हैं उसका रीजन क्या है. तो यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस टाइम पे बिकॉज ऑफ जो भी हमारा माहौल है उससे थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना है और थोड़े से बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. Time spent करने. And as very well said, time spent with children is never wasted. Yeah, exactly. So that is what you have asked us to do. So next question in this would be about the physical health. उसको कैसे maintain किया जाए? Because physical inactivity is the main problem like we are facing. Because अभी तो बच्चे बाहर भी नहीं जा सकते, खेल भी नहीं सकते, cycling, running is not also possible. वो कैसे maintain किया जाए घर पे रह के? एक्चुअली ये मैंने जैसे पहले बताया कि नॉर्मली बच्चों को हम लोग एक माइंडसेट है हम लोग का कि हमें लगता है कि बच्चे जो हैं वो अगर बाहर गलत भी नहीं है ये माइंडसेट बिकॉज ये हमेशा कहा जाता है सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किड शुड गो आउट एंड प्ले इन ओपन चाहे वो हवा है चाहे आपका सनलाइट है दे शुड हैव दैट एंड वो बहुत ज़रूरी है. बट अभी क्या है कि बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल. अगर है पॉसिबल तो कुछ लोग बाहर निकल भी रहे हैं बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर नॉट फाइंडिंग इट सेफ टू सेंड देयर किड्स आउट. सो ऐसे में हो जाता है कि आपको घर के अंदर ही बच्चों को इन्वॉल्व करना है एंगेज करना है कुछ फिजिकल एक्टिविटी में. अब ये कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. आप एक मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए. हाँ जी, of course. तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो हमारा रूटीन है हम नॉर्मली रूटीन के अंदर क्या करते हैं कि हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि उनको ये पढ़ना है इतने घंटे ये क्लासेस अटेंड करनी है लेकिन हमें उनकी इस रूटीन के अंदर एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर जुम्बा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चों को पसंद हो उसको भी रूटीन का एक पार्ट बनाना है. बच्चे केवल बोर हो जाते हैं उनको मज़ा नहीं आता खास तौर पे योगा जैसी चीज़ों में. तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना है.
आप देखेंगे कभी भी बच्चे उस एक्टिविटी को बहुत इंजॉय करते हैं जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप कभी कोई जूम पर अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं, या फिर आप घर में ही अपनी कोई डांस पार्टी प्लान कर सकते हैं वीकेंड पर। रूटीन में आप कोई दिन का हाफ एन आवर ऐसा प्लान कर सकते हैं जिसके अंदर कि पेरेंट्स को और बच्चों को, फैमिली में जो भी लोग हैं सबको मिलकर के कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अब वो एरोबिक्स भी हो सकता है, वो जुम्बा भी हो सकता है, कुछ नहीं करना तो डांस ही कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। और आजकल तो चूंकि ऑनलाइन क्लासेस का भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, तो आप बच्चे को किसी ऐसी क्लास के अंदर भी एनरोल करा सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर उनके कोई फ्रेंड उनके साथ करते हैं तो वो उसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो आप उनकी फ्रेंड से बात कर सकते हैं और अपनी जो भी आपका बच्चा है उसके एक या दो क्लोज फ्रेंड्स के साथ उसको किसी ऑनलाइन क्लास के अंदर एनरोल करा सकते हैं। फिर वो किसी भी मीटिंग ऐप के थ्रू वो लोग उस पर अपना जो भी एक्टिविटी है, जो भी डांस है या जिस भी फॉर्म की एक्सरसाइज है, वो उसको एक साथ कर सकते हैं। Please be a little loud, ma'am. या इज इट ओके नाउ? हाँ जी। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि आप चूँकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि जो कि अगर उनके कोई ऐसे आपके दोस्त हैं जो बच्चों के, अगर वो भी कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ऐसी किसी क्लास में एनरोल करा दें बच्चे को, जो ऑनलाइन एरोबिक्स हो सकता है, ज़ुम्बा हो सकता है, कोई और किसी तरह का फिज़िकल एक्टिविटी हो सकती है। तो क्योंकि बच्चे जब उनके फ्रेंड्स साथ में करते हैं, तो दे एन्जॉय मोर, या फिर फैमिली वाले साथ में करें। तो ये 2 ऑप्शन, अगर आप बच्चे को अकेले बोलेंगे कि आपको ये क्लास करना है, आपको आधा घंटा ये योगा करना है, तो नहीं करेंगे। तो आपको या तो उसको एज ए टीम आप खुद करें, या फिर आप उसके दोस्तों के साथ एक टीम बना करके उसको कराएं। बट कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी जिसको आपका बच्चा एंजॉय करता हो, उसे जरूर उसको इसके अंदर इन्वॉल्व करें। या राइट, अपने बच्चों को अपने साथ योगा या किसी भी तरह का डांस, या कुछ नहीं तो डांस तो करवा ही सकते हैं, ये बिल्कुल एक बहुत बिल्कुल। ही प्रैक्टिकल चीज है। जी बट फिजिकल हेल्थ के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया, मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर लिया। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का क्या? लाइक बच्चे घर पे हैं तो कुछ ना कुछ उनकी डेली बेसिस पे फरमाइशें रहती हैं, कभी कुछ जंक फूड खाना है, कभी बर्गर खाना है, कभी कुछ खाना है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? दलमीत, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या क्वेश्चन आपने मुझे पूछा, और ये मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे हैं तो वो जो आप जंक फूड की बात करें वो डिमांड करेंगे ही करेंगे। डिमांड अगर करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चे कैसे? तो ऑफ अब कोर्स। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको ना, यहाँ पे ये आपकी ड्यूटी हो जाती है कि आप बच्चों को जंक फूड से दूर कैसे करें। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स इसके एक पीपीटी के अंदर डाले हैं, पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ, फिर विल डिस्कस दैट। या तो सबसे पहले तो वी वर टॉकिंग अबाउट जंक फूड। तो जंक फूड से हम बच्चों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो दलवीर, मेरा मानना है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपके घर के अंदर आपका जो भी जंक फूड है, आपको उसको या तो घर से बाहर फेंकना है, या फिर अगर आप ये इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि आपको कहते नहीं खाना वेस्ट नहीं करना है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी ग्रॉसरी ऑर्डर करें तो आप उसके अंदर जंक फूड का ऑप्शन नहीं रखें, उसकी जगह पे आप हेल्दी ऑप्शन रखें। जब बच्चों को घर के अंदर जंक फूड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उनके पास कोई और ऑप्शन होगा ही नहीं, देन दे विल हैव टू गो फॉर हेल्दी ऑप्शंस। जब चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे फ्रूट्स हों, तो पहली चीज़ क्या करनी है कि आपको घर के अंदर जंक नहीं रखना है। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि जो सपोज़ बच्चा है, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे तो डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो अब जो सपोज़ वो पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहे हैं, या वो कहते हैं मुझे बर्गर खाना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एज़ अ पेरेंट आपकी ड्यूटी हो जाती है कि आप बच्चे को हेल्दी ऑप्शन दें। क्योंकि आप मैदा का पिज़्ज़ा बना रहे हैं या बर्गर बना रहे हैं, उसकी बजाय आप मल्टीग्रेन या फिर आप आटे के बेस के साथ तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मेयोनीज़ यूज़ करना है, कुछ जगह पे आप हैंग कर्ड यूज़ कर सकते हैं, और आप बहुत सारी सब्जियाँ उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा-सा हेल्दी ऑप्शन देना है। ऐसा नहीं है कि मना करना है बच्चे से, लेकिन आपको उसको बताना है कि आप ये वाला ऑल्टरनेट चीज़, ऑप्शंस हाँ, उसके लिए। अल्टरनेट देना है और हेल्दी तरीके से बना के खिलाना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप पूरे वीक में बच्चा कभी भी डिमांड करे, तो उससे अच्छा है कि आप एक टाइम फिक्स कर देंगे। सपोज़ ये 21 मील्स हम लोग के मोटे-मोटे होते हैं, जो मेजर मील्स होते हैं 7 दिन के अंदर। तो हम उसमें से बच्चे के लिए फिक्स कर सकते हैं कि 3 मील आपकी पसंद के हो सकते हैं, कोई भी। नॉर्मली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 मील इज़ गुड इनफ, बट बच्चों के लिए हम थोड़ी लिबर्टी दे सकते हैं। तो हम 3 मील तक उनका कर सकते हैं, तो वो अपनी चॉइस कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी मील है 18-19 वो उनको हेल्दी खाना है। तो ये कुछ टिप्स थे जिनको कि अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी जंक फूड की क्रेविंग भी काफ़ी हद तक फुलफिल हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा भी वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो हेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा जाएंगे। जी, तो ये तो थी जंक फूड की बात। जंक फूड के अलावा एक और चीज़ है कि जैसे हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है बच्चों के साथ। आप छोटे बच्चे हैं तो आपको उनको खाने का जो उनका खाना है, उनकी शेप्स, उनके कलर से आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि बच्चों को ज़्यादा दिखते हैं कि डिफरेंट तरह की शेप्स आप बना रहे हैं, एनिमल्स की शेप बना रहे हैं, आप कुछ और शेप बना रहे हैं फूड से, खाना दिखने में बहुत अच्छा है, उसके अलग-अलग कलर्स उसके अंदर हैं, तो बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्टिव। या और दूसरी एक और चीज़ हम लोग इसमें कर सकते हैं कि हमें बच्चों को कुकिंग और जो भी आपका इनफैक्ट ग्रोसरी शॉपिंग के अंदर भी इन्वॉल्व करना है। जब आप ग्रोसरी शॉपिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और आप बताते हैं कि हम ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन ले रहे हैं, इसका ये फ़ायदा है। उसी तरीके से आप कुकिंग में भी अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, यू जस्ट टेल देम कि दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड वो खुद से सामने देखते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा डल रही हैं इसके अंदर, ये अनहेल्दी है, इतना सारा ऑयल है, इतना सारा शुगर है। तो ऑफ कोर्स बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है रिलेटिवली, वो उतनी ज़िद नहीं करते हैं। उनको चीज़ें समझ में आती है कि वाई वी आर इंसिस्टिंग फॉर अ हेल्दी ऑप्शन। तो आपको बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है। और एक और चीज़ है जो कि बच्चों को बिजी रखना है कुछ और हॉबीज़ में, ताकि उनका दिमाग इधर उधर नहीं जाए बहुत ज़्यादा। तो जो बच्चे बिजी रहते हैं, अच्छी चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो ऑफकोर्स उनकी ये डिमांड भी कम हो जाती है। बेसिकली उनको इन्वॉल्व करना है, उनको खुद अवेयर कराना है। हालांकि छोटे बच्चों को खुद अवेयर कराना बहुत डिफिकल्ट है, बट जो ऑप्शंस आपने दिए उनसे काफी हद तक प्रैक्टिकल है। हाँ, मतलब आप ट्राई करेंगे तो होता है, इट वर्क्स, मैंने देखा हाँ, है ऑफ अपने कोर्स घर में प्रैक्टिकल इसलिए। है। हाँ, तो आप थोड़ी-सी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने से ठीक है, स्पेशली 100% शेप्स एंड साइजेस। हाँ, 100% रिज़ल्ट नहीं भी आएगा, लेकिन आप अगर 50% भी रिज़ल्ट आता है, आपका बच्चा वीक में अगर 10 बार बाहर का खाना खा रहा था, तो अभी मान लीजिए वो 5 पे आ जाता है, 6 पे आ जाता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड गुड थिंग कि कुछ तो हो रहा है। तो आप ग्रेजुअली फिर ऑफ धीरे-धीरे कोर्स। बच्चों को समझ में आने लगता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड ऑफ फॉर द कोर्स। हेल्थ। वैसे भी बच्चों में हर चीज जानने की क्यूरियोसिटी होती है। जैसे कि आपने बोला कि आप उसको बताओ कितना मैदा यूज हो रहा है, कितनी चीनी यूज हो रही है, तो हो सकता है धीरे धीरे धीरे-धीरे उनको उनको खुद समझ समझ में में आने आने लग जाएगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं जी। है। सो अभी हमारे एंड पे तो सारे क्वेश्चंस हम लोग ने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। अगर आप कुछ और शेयर करना चाहती हैं तो आप प्लीज कह सकते हो। एक्चुअली मैंने वही बताया कि ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की थी कि बिकॉज किड्स आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ बैड फेज और टफ टाइम, तो हमें थोड़ा सा लिबरल होना है एज अ पेरेंट बच्चों के साथ। हम्म। और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है दैट शुड बी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि हम लोग उम्मीद करें कि अब तो बच्चा 24 घंटे घर में है तो वो पूरे साल का कोर्स कर डाले। ठीक है, उसको तो ये भी सीख ले, ऑनलाइन क्लासेस भी हम इतनी सारी करा दें कि हमने लग रहा था कि बच्चा बाहर तो जा नहीं रहा, तो हम बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व कर दें। तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है बच्चे के लिए, क्योंकि दोनों के हम्म। बीच में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि हम लोग खुद सब लोग थोड़ा सा बहुत लंबे टाइम से, ऑफ कोर्स वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग, एंड हम लोग को ये जो टाइम चला है थोड़ा सा हम लोग लिए टफ है। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें बच्चों के साथ हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा प्रैक्टिकल रखना है और थोड़ा रीजनेबल रखना है। तो हमें और जो ऑफ जो भी कोर्स। अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम है जो लेकर के हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको करें, और बस बाकी तो फिर इट्स लाइक गुड टाइम जो वी आर स्पेंडिंग टुगेदर एज अ फैमिली। ऑफ कोर्स, बिकॉज स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज हो गया, बिकॉज स्कूल की क्लासेस भी ऑनलाइन है। उसके बाद पेरेंट्स को ये होता है कि कुछ नया सीख ले। तो वो चीज कंट्रोल करने के लिए जो आपने ऑप्शंस बताए हैं, योगा, डांसिंग, ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। हम लोगों ने अपनी कुकिंग लास्ट सिखाना। जी, जी, हमने लास्ट सेशन में भी इसमें काफ़ी डिटेल में बात की थी कि और क्या हाँ ऑप्शंस जी। हो सकते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट तरीके से। ऑफ इनफैक्ट कोर्स। मेरे कुछ वीडियोज़ भी हैं इसके ऊपर, जिसमें कि काफ़ी डिटेल में बात की गई है कि आप क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो बेटर तरीके से बच्चे जिसमें अपना टाइम अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। So for your little ones, you can always log on to Mama Mantra on YouTube. वहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज को आंसर किया हुआ है प्रियंका ने। और इससे भी ज्यादा आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ एक लाइव सेशन रखें, तो आप हमें हमारे फीडबैक फॉर्म में हमारी वेबसाइट www.richesmultiservices.com पे जाके बता सकते हैं। और हम नेक्स्ट सेशन को उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। प्रियंका जी को स्टार्टिंग में ही हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक या दो सेशन नहीं चाहिए, हमें पूरी सीरीज चाहिए पेरेंटिंग पे। एंड शी इज कीपिंग हर प्रॉमिस विद अस। उन्होंने ये सेकेंड सेशन ऑलरेडी हमारे साथ किया है। नेक्स्ट सेशन की डेट विल अपडेट ऑन आवर वेबसाइट as well as on our Facebook page. Thank you for joining us, Priyanka. For giving me this opportunity, yeah, and sharing Thank my you so views with much. the thank you. Thank you so much. And my regard to all the viewers of our channel, of our Facebook page. Thank you so much. Have a great day ahead. Thank you.